Good morning, dear students. We were doing lesson 7th, cyber ethics. Let us start. Firstly, our topic is privacy. Privacy means your personal information should not be disclosed to the others. Means it should be safe. To safeguard to your privacy means security solution requires the convergence of the components. Means it should not be disclosed to other, and the processes can be used that are technologies, peoples, and the process. Firstly, people. You should not share your personal information to anyone, like the credit card number, OTP, etc. And after that process, the site which whatever you are using, that should be a secure site. For example, the site should have the HTTPS as for the secure, and you should read the review of the other customer also. And under the technology, you have to use the strong password and update your operating system, and accept that you have to use the secure Wi-Fi or mobile data. Next one is other type of the fraudulent on the internet. Means whenever you are on the internet, which kind of the fraudulent can be happened, that are firstly cyber theft. Cyber theft means stealing of the confidential or the personal information, such as like the password, bank detail, or the credit card. Next one is identity theft. When anyone else use your online identity, that result in the loss of the information like username, password. It is known as the identity theft. Secure data transmission. Secure data transmission means the steps to taken for the prevent unauthorization access of the data. Here are the some techniques which can be applied. For example, firstly, authentication and the authorization. Authentication means when an individual introduces himself, that identify himself as a verified, that is called the authentication. On the other hand, authorization authorization is required to access the network. The administrative policies determine that the information and the computing services can be accessed by the home under what condition. Intrusion detection system. It checks the network movement and identifies the doubtful pattern that may indicate a network or the someone attack for the someone attempting to break the system. Its example is firewall. Next one is encryption. Encryption is the process of transforming data into the unreadable code. The email encryption is PKI. PKI means public key infrastructure. Next one is the HTTP protocol. HTTPS protocol. As I told you, S for the secure, and it uses the certificates called the TLS and the SSL. These are the certificate which encrypt the information. Password and the PIN number. Password and PIN numbers can also be used to secure your data. Antivirus. Antiviruses are also there which identify and prevent the virus from your computer. McAfee, AVG, and the Quick are the example of the antivirus softwares. Other ethical issues. As I told you that ethical means what the good or the bad habits in the internet using. So some ethical issues are here, which are
फर्स्टली intellectual property right, or it's also called the IPR. Intellectual property right means legal property that a person have right for his own creation, that can be artistic or the commercial. The common type of the intellectual property right are industrial property right. It includes the trademarks and the copyright. The right regarding the creating a copy of the any product that is reserved by the author. So dear students, now I am transferring the same matter into the Hindi. You have to listen carefully. स्टूडेंट्स, ये सारा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ. तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज प्राइवेसी. तो प्राइवेसी का मतलब ये है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी और को डिस्क्लोज़ नहीं होनी चाहिए ताकि उसका मिसयूज ना हो सके. तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उसके लिए जो मेन माइलस्टोन है वो आपके हैं पीपल, टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस. पीपल मीन्स यहाँ पर ये है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि कार्ड डिटेल, OTP एट्सेट्रा, ये आप किसी और पीपल्स को, अनवांटेड पीपल्स को शो ना करें. और प्रोसेस के अंडर में जो आपका है वो ये है कि जो आप साइट यूज़ करते हैं वो आप सिक्योर साइट यूज़ करें जैसे कि HTTPS. और इसके अलावा आप कस्टमर्स के रिव्यू भी चेक करते रहें. और टेक्नोलॉजी के अंदर आपका ये आता है कि आप जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग दें और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करें. और जो आपका वाईफाई है वो आप सिक्योर यूज़ करें. उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रॉडेंट ऑन द इंटरनेट. मीन्स इंटरनेट के ऊपर किस किस तरह के फ्रॉड किए जाते हैं. सबसे पहला आपका है साइबर थेफ्ट. तो साइबर थेफ्ट के अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड, बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड, ये चोरी की जाती है. यानी इस तरह के जितने भी क्राइम आते हैं वो आपके साइबर थेफ्ट के अंडर आते हैं. अगला आपका है आइडेंटिटी थेफ्ट. आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर कोई आपकी आईडी हैक कर लेता है और उसके थ्रू आपकी कार्ड डिटेल, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, यूज़र नेम, पासवर्ड का मिसयूज़ हो सकता है. सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन. आप चाहते हैं कि आपका डाटा इंटरनेट के ऊपर सिक्योर रहे और उसको कोई अनवांटेड पीपल्स यूज़ ना कर सकें. तो उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी है जैसे कि सबसे पहले है ऑथेंटिकेशन एंड द ऑथराइजेशन. ऑथेंटिकेशन के अंदर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है तो उसके थ्रू ही आप अपना वैलिडेशन कर पाते हैं कि आप पर्टिकुलर साइट के लिए, या जैसा एग्जांपल के तौर पे फेसबुक है आपकी, उसके अंदर आप यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं. दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द ऑथेंटिकेशन. और अगला आपका है ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन के अंदर ये रहता है कि आपको परमिशन कहाँ तक मिली है. मीन्स एक पर्टिकुलर साइट के अंदर आपको क्या क्या अलाउड है करना, तो वो कहलाता है ऑथराइजेशन. नेक्स्ट आपका है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम. ये आपका नेटवर्क के ऊपर जो आपकी मूवमेंट है उसके अंदर कोई डाउटफुल पैटर्न आता है तो उसको चेक करता है. और कोई ऐसा सिस्टम जो कि आपके, कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है तो उसको ब्रेक कर देता है. इसका एग्जांपल है आपका फायरवॉल. तो विंडो के अंदर फायरवॉल एक सिस्टम होता है, पता होगा आपको. तो ये आपके कंप्यूटर के अंदर
मलिशियस डाटा को आने से रोकता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है क्रिप्टोग्राफी और इनक्रिप्शन। तो क्रिप्टोग्राफी और इनक्रिप्शन किसको कहते हैं कि आपका जो डाटा है वो अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कोई और उसको रीड नहीं कर पाता। और ईमेल के लिए PKI इनक्रिप्शन सिस्टम यूज़ किया जाता है, HTTPS प्रोटोकॉल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिक्योर साइट्स के अंदर HTTPS प्रयोग होता है, S मीन्स सिक्योर। और ये जो सिक्योर साइट्स होती हैं ये सर्टिफिकेट होते हैं, एक तो TLS और एक SSL। ये सर्टिफिकेट्स आपकी साइट्स को सिक्योर बनाने में आपकी मदद करते हैं। पासवर्ड एंड पिन नंबर। पासवर्ड और पिन नंबर के द्वारा भी आप अपनी आईडी को सिक्योर कर सकते हैं। एंटीवायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में वायरस को स्कैन करती है और वायरस को रिमूव करती है। और कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे एंटीवायरस के, जैसे कि मैककेफे, AVG और क्विकहिल। अगला आपका है अदर एथिकल इशू। मीन्स कुछ ऐसे इश्यूज़ जो कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए आपके सामने आते हैं, जैसे कि IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके अंदर ये रहता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, उसने कोई एक आइटम डिज़ाइन की, तो क्या वो आइटम उसी की है और उस आइटम के ऊपर उसका कितना अधिकार है, आर्टिस्टिकली और कमर्शली। तो इस चीज़ को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और IPR। तो इसके अंडर में आपका एक तो आता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जैसा कि ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो है एक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड की हुई है वो एक ट्रेडमार्क को डिज़ाइन करती है, तो वो ट्रेडमार्क कोई और यूज़ नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल वन लोगो इज़ देयर दैट इज़ ऑफ द नाइकी, यानी नाइकी कंपनी का एक लोगो है, तो कोई और कंपनी उस लोगो को यूज़ नहीं कर सकती, ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकती। इसी तरह से कॉपीराइट। कॉपीराइट के अंदर कोई एक कंपनी जो एक पर्टिकुलर आइटम को, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है, तो उसको बेचने का अधिकार उसी को होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक फ़िल्म बनाई गई, वो फ़िल्म एक फ़िल्म बनाएगी, उस फ़िल्म को चलाने का अधिकार मीन्स कौन सी कंपनी को है, टिप्स है या कोई हंगामा है, इस तरह से। तो वो फ़िल्म को चलाने का अधिकार किस को देना है, ये उस कंपनी के द्वारा ही डिसाइड होगा, तो उसको कहा जाता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट सेल किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा, और इतना जितना मैंने आपको समझाया है इसके अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।